Good morning, class. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so today we have to discuss. We were discussing array questions, right? We were discussing about the array slicing, like how we can print a particular element of an array, how we can print the complete array. Yes or no? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's continue with that subject. We have a program, okay, and in that program first you need to get the input from the user. पहले आपको जो भी array के elements है, firstly you need to get all the elements of an array from the user side, and then you will have to print all the elements of an array, and then you will have to find maximum element of that array, minimum element, and sum of all the elements. Okay, this is you have to do in a single program. Now I'm showing you the compiler, online compiler, and the program also. Let me share the screen first. So you all know about the basics of array, like how we can extract the particular element of an array, how we can use it. You all know that. So here is the program. First of all, I will use a loop here, for loop I am using here. For, as you all know, the indexing of an array starts with 0. And if there are 10 elements in an array, then indexing will be from 0 to 9. Okay, 0 to n minus 1 always. For I is equals to 0 to I is equals to कब तक चलेगा, तब तक आपका I less than equals to 9 है and I plus plus. Do echo, enter the ith number. आप हर इटरेशन में क्या मांगोगे, I index का नंबर मांगेंगे. If I is 0, it will ask for the 0th index number, and if it is 1, then it will ask for the first index number, first index element. Now read array $I. Okay, done. ये यहाँ तक प्रोग्राम है मेरा to get the elements of an array from the user side. Is it clear to everyone? ये block सबको clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good. ma'am. Now I am printing all the elements of an array by using the for loop. Echo the array is, again I have used for loop, it will be from 0 to 9. echo $array $I, हर एक इटरेशन में ith नंबर को प्रिंट करता हुआ चलेगा. This block is to print all the elements of an array one by one. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, now I have to find maximum element and minimum element of an array. Okay, initially I have initialized the maximum and minimum variable with the value of 0th index, with the value of element which is present at 0 index. ओके तो अगर मेरे पास सपोज करो 10 एलिमेंट्स हैं तो मेरा इंडेक्सिंग 0 to 9 है, तो इनिशियली मेरी जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है उसको मैंने मैक्स में स्टोर कर दिया है, मिन में स्टोर कर दिया है. नाउ आई विल कंपेयर दिस मैक्स विद ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन. सो आई हैव यूज्ड फॉर लूप हियर फॉर आई इन array at the rate. That means आई के अंदर आपकी एक एक करके वैल्यू आएगी. किसकी वैल्यू आएगी? आपके array के एलिमेंट्स की. yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. डू इफ $I इज ग्रेटर देन मैक्स. अगर आपका जो आई की वैल्यू आएगी आपकी वन बाय वन, आई की वैल्यू क्या होंगे? आपके एलिमेंट्स होंगे array के. अगर कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन मैक्स है तो आपका मैक्स अपडेट होगा. मतलब yes or no? Because we need to find the maximum element. Yes, So ma'am. if there is any element, there is any I which is greater than max, then max is equals to $I. जैसे कि समझिए अगर I की वैल्यू आपकी आती है यहाँ पर I की वैल्यू सपोज यहाँ पर 10 आती है और मैक्स में वैल्यू जो है वो है 9. तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू हो गई. तो मैंने मैक्स को क्या अपडेट कर दिया? मैक्स इज इक्वल्स टू $I, मतलब मैक्स इज इक्वल्स टू 10.
जो कि पहले 9 था, अब मैंने मैक्स की वैल्यू क्या सेट कर दी है बेटा, 10। अब क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट FI। अब आप जब एक एक करके वैल्यू ले रहे हो तो आप मैक्स के लिए भी चेक कर लीजिए और साथ साथ मैं मिन के लिए भी चेक कर रही हूँ उन वैल्यूज को। ठीक है, मिन के लिए कैसे चेक कर रही हूँ कि जो आई की वैल्यू आई है, जैसे 10 आई वैल्यू और मिन में वैल्यू थी 9, इज 10 लेस देन 9? नो, तो हम बाहर आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे वैल्यू होती 8 तो क्या होता आपका, मिन की वैल्यू अपडेट हो जाती है और मिन की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 8 हो जाती है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मिन और मैक्स को चेक कर रही हूँ। डन। जब आपका ये पूरा फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक है, इट इज फ्रॉम हेयर टू दिस, डन। Okay, now I will I will find the max and minimum according to this, and by using this for loop and these two if conditions, then I will get my updated max and minimum. Echo max is $max, echo min is $min. Sum is equals to 0, then for I in $array at the rate. Okay, क्या करेगा, अब हमें सम करना है तो I में वैल्यू लेगा array के element 1 by 1 और उसको, now I need to find the average of an array, average of all the elements present in an array. For that I have initialized average is equals to 0, num is equals to 10, average is equals to echo sum divided by num. I have used bash calculator here. Echo average is $average. Now I'm running this program here. I'm entering the number. Oh, I skipped the third number. मैंने थर्ड नंबर स्किप कर दिया, 1 मिनट। यहाँ पे ये बैश कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, या तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, हो सकता है। लेट मी चेक फॉर दिस। मैंने दूसरे लैपटॉप में ट्राई किया था, उसमें ये काम कर रहा था, बट यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैश कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। चलो आप बिना बैश कैलकुलेटर के भी कर सकते हो। दिस ये काम कर रहा था बैश का, आई डोंट नो व्हाई इट इजंट वर्किंग। चलो हम EXPR से कर लेते हैं सीधा इसमें फिलहाल। वी कैन डू इट यूजिंग, एक सेकेंड, इसको एडिट ना करके मैं इसे कमेंट बना देती हूँ सो दैट आई कैन एडिट इट फर्दर। Average is equals to EXPR $sum divided by $num। ओके, आपने लैपटॉप पे बैश कैलकुलेटर यूज करके देखना और बताना कि वो होता है नहीं होता, ठीक है। टर्मिनल से हो जाएगा, अगर लैपटॉप में टर्मिनल है ना इनबिल्ट तो हो जाएगा उससे, क्योंकि मैंने पहले उसी से किया था। अभी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में इसमें है नहीं। एवरेज इज 34 है, ठीक है। यस मैम, अगर टर्मिनल वर्चुअल बॉक्स में है तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है।
ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एन array, मिनिमम एलिमेंट एंड एवरेज ऑफ एन array. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन अ TSC फाइल और उसके अंदर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, उसके इंग्लिश के मार्क्स है 20, उसके मैथ्स के मार्क्स है 40 और उसके साइंस के मार्क्स है 50. इस तरीके से यू हैव डेटा ऑफ अराउंड 5 स्टूडेंट्स. ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम फॉर द डेटा ऑफ एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स. Okay, so have you understood the this file, like how this data is organized in this file and what each column representing here? This column is for the student ID, like 1 2 3 4 5, and this column, second column, is for the English marks, third column is for maths marks, and this fourth column is for science marks. Okay, now what I have to do, I will have to check for all the students one by one whether each student is pass or fail. I will check his or her marks of English, maths and science, and his marks should be greater than 50 in each subject. Okay, if his marks is greater than 50 in each subject, that means that particular student is passed, and if not, then the particular student is fail. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, देखो ma'am. मैंने प्रोग्राम यहाँ पर, हेयर इज द प्रोग्राम. सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको पहले प्रोग्राम बनाना बताती हूँ, आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक 3 वेरिएबल लोगे जिसमें आप मार्क्स लोगे. एक आपने P ले लिया, आपने Q ले लिया, आपने R ले लिया. ठीक है, यही करेंगे हम. आई एम राइटिंग हेयर P, Q and R, राइट. P के अंदर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए. मुझे क्या करना है, 1 by 1 मुझे मार्क्स चाहिए इन वेरिएबल्स के अंदर. अगर मैं स्टूडेंट 1 की बात करती हूँ, मैं अगर यहाँ पर लूप भी चलाऊंगी तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा बेटा? मैम 1 से 5. 1 से 5. आपको कैसे पता चलेगा कि कितने 1 to 5? अब तो आप देख पा रहे हो. हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें? मैम पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स हैं तो 1 to n. तो n कैसे फाइंड करोगे? हम 0 से n-1. केतन बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? हम 0 to n-1. नहीं, वो तो ठीक है, n चलेगा, n-1, लेकिन आप n कैसे फाइंड करोगे? मैं ये पूछ रही हूँ, n कैसे फाइंड करोगे? आप ये देखो, अगर आपके पास एक फाइल है, उसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको काउंट करने हैं, तो आप कैसे काउंट करते हो? नंबर ऑफ लाइन से. आपका हर एक लाइन में एक बच्चे का डेटा है ना, तो अगर आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? Yes, ma'am. सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है. तो उसके लिए व्हाट आई विल यूज हियर, आई विल यूज n इज इक्वल्स टू $WC-N. अब क्लियर है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मेरा लूप चलेगा फॉर I in $1, एक सेकेंड, सीक्वेंस 1, कहां से कहां तक, 1 to n. ठीक है, डू. अब आपको, जब आपकी i की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट रो में होगा ये. Yes, यस और ma'am. नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा फर्स्ट रो में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
देखो फर्स्ट रो में तो आप इजीली चले जाओगे हेड हाइफन आई यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको थर्ड रो में जाना होगा तो आप कैसे जाओगे, देखो उसके लिए मैं यहाँ कमांड क्रिएट कर रही हूँ। हेड हाइफन आई, फाइल का नाम क्या है, a.tsc फाइल टेल हाइफन 1। अब देखो जब आपका I1 था यहाँ पर तो क्या करेगा, हेड हाइफन 1 a1.tsy, तो कौन सी लाइन आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट लाइन। देन टेल हाइफन 1, तो लास्ट ऑफ फर्स्ट, अगर एक लाइन आ रही है तो लास्ट ऑफ फर्स्ट वही लाइन होगी, यस और नो। यस और नो। यस मैम। अगर मेरे को थर्ड लाइन में जाना है इस कमांड से, वो कैसे पहुंचेंगे, हेड हाइफन 3 a1.tsv, तो अब बेटा हेड हाइफन 3 से कितनी लाइंस प्रिंट होंगी मेरे पास, स्टार्टिंग की 3, स्टार्टिंग की 3 लाइंस, और फिर मैं यूज कर रही हूँ उसी डेटा पर टेल हाइफन 1, तो 3 लाइन में से कौन सी लाइन मेरे पास आ जाएगी अब, थर्ड। थर्ड, Last क्योंकि लास्ट वाली लाइन इसमें कौन सी है, थर्ड वाली। तो इस तरीके से मैं पर्टिकुलर, मतलब इस कमांड से मैं ith लाइन पर जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, पी में आपको कौन से मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में बेटा। फर्स्ट में तो आपकी आईडी है ना स्टूडेंट की, तो आई विल यूज कट कमांड हियर, cut hyphen d, delimiter here is space hyphen f, and which column I want, second column। अब आया समझ में ये। अब Q के अंदर कौन सा चाहिए कॉलम आपको, थर्ड कॉलम, तो सिंपली इसी को कॉपी करोगे लेकिन कॉलम इसमें चेंज कर दोगे। सिमिलरली R में साइंस के मार्क्स हैं, सेम कमांड होगी, बस कॉलम चेंज करना है। इस तरीके से आप पास तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, यस मैम। यहां तक समझ में आया। अब प्रोग्राम को देखो, अब देखो मैंने यही किया है। अब आपकी कुछ नहीं, सिर्फ इफ कंडीशन लग के आपको चेक करना है। मैंने क्या किया, फाइल का नेम रीड एंटर कराया यूजर से, रीड ए, b इज इक्वल्स टू 1, p इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 0 एंड r इज इक्वल्स टू 0। p q r आपके इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के मार्क्स हैं जिनको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। c इज इक्वल्स टू wc हाइफन l, नंबर ऑफ लाइंस मेरी c में है, दैट इज wc हाइफन l एंड $a इज इनपुट फाइल। और उसके बाद क्या है, आप जब भी लाइन्स प्रिंट कराओगे ना, देखो मैं यहाँ पर अगर लाइन प्रिंट कराऊंगी wc हाइफन l a1.tsv, देखो आपका, एक सेकेंड, आपकी नंबर ऑफ लाइंस आ गई है और फाइल का नाम भी आ रहा है साथ में। लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस चाहिए यहाँ पर। तो व्हाट यू विल डू हियर, आप क्या करोगे, कट कमांड यूज करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फील्ड चाहिए इसके आउटपुट में से। सो यू विल यूज कट हाइफन डी, डबल, यहाँ पे डिलिमिटर आपका स्पेस है, सो आई हैव मेंशन्ड स्पेस हियर एंड हाइफन f1, इससे आपकी नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। अब आपका लूप, मैंने यहाँ पर वाइल लूप चलाया, फॉर लूप भी चला सकते हो, इट इज अप टू यू। फॉर वाइल लूप चलाया जब तक मेरा b इज लेस देन $c है, ठीक है। b मेरा 1 से इनिशियलाइज है, हर एक इटरेशन में मैं b को इंक्रीमेंट करूंगी बाय 1, और कब तक चलाऊंगी b को, जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू c है।
Now P is equals to same command which I have discussed with you, हाइफन $B. यहाँ पे मैं I यूज कर रही थी आपको समझाते वक्त, यहाँ पर वो B यूज किया है. And the same command is used here to print all the marks of all the subjects. और मैं अब इन तीनों मार्क्स को कंपेयर करूंगी 50 से. If P is greater than equal to 50 and अगर if you want to use and or ऑपरेशन between the conditions, उसके लिए आपके पास दो है. आप एंड के लिए हाइफन ए यूज कर सकते हो, ओ के लिए और के लिए आप हाइफन ओ यूज कर सकते हो. ठीक है, एंड के लिए हाइफन ए और के लिए हाइफन ओ. सो एंड मैथ्स के मार्क्स क्यू में है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होने चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू है तो बच्चा पास है, अदरवाइज बच्चा क्या है, फेल है. ये प्रोग्राम सबको समझ में आया है नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ये प्रोग्राम सबको क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. Now I am showing you the execution. फाइल 1, फाइल का नाम दे रही हूँ मैं यहाँ पे a1.tsc. देखो इसने क्या करा, मैं इसको हटा देती हूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे. ये मैंने सिर्फ अपने प्रोग्राम बनाते वक्त ये लिखा था. यस, नाउ आई एम रनिंग इट अगेन. देखो फर्स्ट स्टूडेंट फेल है, आप डेटा देख सकते हो. फर्स्ट स्टूडेंट 20, 40, 50 फेल ही है ना, देखो फेल है. सेकंड वाला 60, 70, 80 पास है, तो यहाँ पे इसने पास प्रिंट कर दिया. थर्ड वाला 78, 88 तो ठीक है, लेकिन एक में 33 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 नहीं है, तो ये बच्चा भी फेल हो गया है. फोर्थ वन इज पास एंड फिफ्थ स्टूडेंट इज फेल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next program is to implement timer. अगर आपको timer implement करना है, then how you will do it? Okay, I'm sharing screen with you. Yes, can you see? अब देखो मेरे पास प्रोग्राम है, मैं इसी को आपको दिखा देती हूँ. टाइमर मतलब कि आपने टाइमर सेट किया 5 सेकेंड्स का, तो आपका 5 सेकेंड्स तक आपका 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से टाइमर सेट हो जाएगा और उसके बाद आपका सिग्नल होगा. सो हेयर आई हैव इनिशियलाइज्ड अ ch कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 1. जब तक आपका इस कैरेक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल है तब तक आपका टाइमर हमारा चलेगा. इको एंटर टाइमर लिमिट रीड n. मैंने टाइमर लिमिट रीड कर ली है n से. फॉर i कब कहां से कहां तक चलेगा आपका i 1 से लेकर $n तक, जो कि इसकी टाइमर की लिमिट है. हर एक इटरेशन में मैं क्या करूंगी, 1 सेकेंड के लिए स्लीप करा दूंगी. ठीक, इको टाइमर यहाँ पे दिखाता रहेगा आपका टाइमर 5, टाइमर 4, टाइमर 3, टाइमर 2, टाइमर 1 इस तरीके से. डन. इको टाइम अप. जब आपका टाइमर खत्म हो जाएगा तो आपका लिखा आएगा टाइम अप. उसके बाद इट विल आस्क यू फॉर द न्यू टाइमर. डू यू वांट अ न्यू टाइमर? इफ यस, प्रेस 1 एंड कंटिन्यू 0 टू एग्जिट. देन अगर वो 1 प्रेस करता है तो आपसे क्या मांगेगा वो, रीड ch कैरेक्टर इट विल आस्क यू. ओके, अब देखो मैं इसको रन कराती हूँ. एक चीज दिखाती हूँ आपको. मैंने ch यहाँ पे रीड किया है. प्रेस 1 टू कंटिन्यू. तो अगर आप ch की वैल्यू 1 देंगे तो देखो यहाँ पे ch की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी और आपका फिर से आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पर ch की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज किया है. ठीक है, now see 1, 2, 3, 4, 5. Want a new timer? If I press 1,
Then again it will ask for time element. Now I'm giving it 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Do you still want? If I do not want, then I will press 0. Here. ठीक है? Clear है बेटा ये program? Yes, ma'am. चलिए, आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास में? I think 73. 73. मैं आप लोग को एक होमवर्क देती हूँ. आपको सिस्टम कॉल्स इम्प्लीमेंट करानी है यूजिंग एनी लैंग्वेज. आप सी लैंग्वेज यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा. आपको सिस्टम कॉल्स इम्प्लीमेंट करानी है और मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी. हम 10-10 के ग्रुप बना लेंगे. ठीक है, 10-10 का ग्रुप बन जाएगा, 1 से 10, और आपके 7 ग्रुप्स हो जाएंगे. ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स किसी भी एक ग्रुप में जाके, जो लास्ट के 3 स्टूडेंट्स होंगे, दे आर फ्री टू गो इन एनी ग्रुप. जिसमें आप वो जाना चाहे बच्चा जा सकता है. बस मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मैम मैं इस ग्रुप में हूँ. ठीक है, लेकिन एक ग्रुप में 11 ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. जो फर्स्ट 7 ग्रुप्स होंगे, मतलब जो फर्स्ट 7 ग्रुप होंगे 10-10 बच्चे के, वो तो फिक्स्ड रहेंगे ही. ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से ग्रुप डिसाइड कर रहे हो. वो फिक्स्ड है. 1 to 10 1 ग्रुप, 11-20 सेकेंड, 21 to 30 थर्ड, इस तरीके 70 तक. और जो लास्ट के 3 स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी एक ग्रुप में मर्ज हो सकते हैं. अब बात आती है, I will assign you system call group wise. You will have to implement system call and then I will take your presentation. You will have to present the program so that everyone will get understand the program. Okay, आपको सिर्फ सब बच्चों को समझाना है. It is like an assignment. ठीक है, तो मैं Okay, आप ma'am. लोगों का मैं आज बता दूंगी किस ग्रुप को कौन सा सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंट करानी है. ठीक है, एक होगी गेट आईडी, आपको प्रोसेस आईडी चाहिए, गेट पीआईडी दैट इज प्रोसेस आईडी. ओके, एंड गेट पीपीआईडी दैट इज प्रोसेस पेरेंट आईडी. ठीक है, और आपका क्रिएट होगा, क्रिएट फाइल के लिए, ओपन फाइल के लिए ओपन होगी आपकी फॉर्क टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस. फॉर्क सिस्टम कॉल है. तो मैं बता दूंगी आप लोगों को कि किस ग्रुप को कौन सी सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, तो दिवाली के बाद हम 1 by 1 प्रेजेंटेशन लेंगे. एक क्लास में मेरे हिसाब से 3 प्रेजेंटेशन हो जाएंगी, 3 सिस्टम कॉल की. ठीक है, तो सभी रेडी रहिए, किसी का भी टर्न आ सकता है दिवाली के बाद. ठीक है मैम. और मैम, मेमोरी मैनेजमेंट वाली पीपीटी अभी ना पोर्टल पे है ना ग्रुप पे. बेटा पीपीटी का आपको करना क्या है, मैं आपको नोट्स दे दूंगी ना. हाँ, मतलब नोट्स उसके जो आने हैं वो. प्रोवाइड यू, लेकिन चैप्टर कंप्लीट तो हो जाने दो एक बार शुभांशी. ओके मैम, वो पीछे का कुछ भूल गए थे ना, इसलिए देखना था. ठीक है. अगर आपको ऐसा कुछ करना होता है तो आप तभी कभी एक पिक्चर ले लिया करो पीपीटी के स्लाइड की. ओके मैम. है ना, दैट विल बी बेटर. ठीक है. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो मैम. समझ में आगे प्रोग्राम जो अभी तक हुए हैं? Yes, ma'am. यस मैम. Do you have the list of practicals? चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी. वैसे आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस लैब का हो गया है. ठीक है, कुछ एक आध प्रोग्राम रह गया होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आपके कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, अब एक क्विज कंडक्ट करा लेंगे और अगर हमारी क्लास बचती है तो वो हम थ्योरी में एंगेज करा लेंगे. ठीक है, उनको हम थ्योरी में, उस लेक्चर्स में हम थ्योरी ले लेंगे उन लैब्स में. ठीक है, अभी तो आपकी दिवाली के बाद ही लैब्स में प्रेजेंटेशन भी होनी है आपके सिस्टम कॉल की. तो आप सब रेडी रहना, मैं किसी भी ग्रुप को उठा के प्रेजेंट करा दूंगी. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी की टर्न आए किसकी नहीं आए. हफ्ते में 2 लैब तो आप लोग की होती ही है, तो एक हफ्ते में आपकी दोनों प्रेजेंटेशन हो जाएंगी. ठीक है, और कोई डाउट है लैब में तो बताओ. नो मैम. अब समझ में आ गया लैब का सारा सिलेबस? यस मैम. चलिए ठीक है क्लास. ओके. हाँ बेटा, स्लाइसिंग वाला रिपीट कर दीजिए एक बार. कौन सा वाला? स्लाइसिंग. स्लाइसिंग. Yes, ma'am. ओके बेटा, बहुत देर बाद बोल रहे हो, क्या बात है? अभिषेक महेश्वरी,
यस मैम। क्या डाउट है स्लाइसिंग में? थोड़ा बहुत कोड याद है स्लाइसिंग का? पहले तो ये बताओ मुझे तुम। यस मैम याद है। बताओ जरा क्या था? उसमें कुछ 1 to 4 2 to 3 ऐसे कुछ था हाँ, स्लाइसिंग। तो क्या डाउट आ रहा था उसमें? मैम उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गलत प्रिंट कर रहा है कुछ। नहीं, उसमें 1 और फिर कोलन 4 था, तो प्रिंट करेगा फर्स्ट इंडेक्स से लेकर नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स तक। यस मैम, लेकिन सेकंड में मैम एक कम कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा। रुको एक मिनट। दिस वन मैं रन करा रही हूँ, बताना मुझे कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। चेक कर लो इस प्रोग्राम को और मैं रन कराऊंगी, तुरंत बताना कहाँ प्रॉब्लम है। यस मैम। बताओ। इसमें मैम जो गौरव, आदित्य, अभिषेक लिखा है, इसमें मैम एक और आना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि मैम थर्ड तक करेगा ना मैम, हाँ, जैसे कि तो फर्स्ट में ये कर रहा है। फर्स्ट हो गया गौरव, सेकंड इंडेक्स से फर्स्ट, यस मैम। सेकंड और थर्ड। मैम इसमें कर रहा है 1 to 4, तो मैम 0 भी प्रिंट फर्स्ट कर से रहा कर है। रहा है सौरभ से 1 2 यस मैम, सौरभ से कर रहा है। 4। अभिषेक तो करेगा, 4 एलिमेंट करने हैं उसको। सौरभ, गौरव, आदित्य और अभिषेक हो गए 4 एलिमेंट। यस मैम 4 तक कर रहा है, और उसके हम 2 to 3 0 1 2 3। मैम इसमें गौरव और आदित्य को करना चाहिए 2 to 3 तक। 2 to 3 नहीं बेटा, 2 to 3 एलिमेंट्स, सेकेंड इंडेक्स से नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स तक। तो सेकेंड इंडेक्स से नेक्स्ट 3 एलिमेंट कौन से हैं? गौरव, आदित्य और अभिषेक। ये वाला ओके मैम, ऐसे हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ स्टार्टिंग इंडेक्स एंड दिस इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस ओके मैम। इंडेक्स से आपको कितने एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं? यस मैम, हो गया क्लियर मैम। ठीक है, चलिए ओके। थैंक यू मैम। मैं एक्चुअली वैसे अटेंडेंस कर। क्या? मैम क्लास एंड मत कीजिएगा, थोड़े मेरा एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ था। दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मैम एक्चुअली